everyone, this is Pooja Singhal, and after a very long time, I welcome you all to the channel Road to Labasna. And we are going to complete the current affairs for the last week of June. 23rd June तक हम already last video में cover कर चुके हैं, तो एक हफ्ते बचे हुए जून के current affairs आज हम finish करेंगे, and then we'll move on to the July. This is the first question for the day, and you have the Telegram group and the YouTube channel and the WhatsApp number for an Academy Plus subscription. So you can contact us through any of the three modes given below. The first question says, consider the following about Yukti 2.0. What is Yukti 2.0? The initiative was launched by Ministry of Commerce and Industry. इस ministry ने launch किया है Commerce and Industry ने. It is an extension to Yukti which was launched to identify ideas relevant in COVID pandemic. So युक्ति का extension है जो कि कोविड की वजह से launch to identify the ideas जो कि कोविड के लिए relevant है उन ideas के लिए. So you need to find out the right choice here. You have these options given below. So here the correct choice is option A. क्यों? क्योंकि इसको पूछा गया है incorrect one. करेक्ट इनकरेक्ट का पहला क्वेश्चन आज हमारा करेक्ट इनकरेक्ट की वजह से अगर जिसका भी गलत हुआ है सो राइट डाउन योर काउंट ऑन योर पेपर. आई होप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं जिससे कि अगर आप कोई स्टेटमेंट आपको गलत लगती है सो यू आर गिविंग द जस्टिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ दैट स्टेटमेंट सो दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपको भरोसा रहे कि आप जो आंसर मार्क कर रहे हो वो तुक्के में नहीं कर रहे हो. So this here the incorrect choice is option first. ये initiative Ministry of Commerce Industry का नहीं है. This is HRD, Human Resource and Development. So you can have the detailed explanation, a little bit of explanation from Yukti 2.0 here in this slide. And if you have any details or if you have any questions regarding it or regarding to your exam or you want to discuss your motivation or anything else, you can ping us on WhatsApp or Telegram. Next question is India's largest and the first virtual healthcare and hygiene expo 2020 was recently launched by. ये किसने launch किया है? इंडिया का largest and first virtual healthcare and hygiene expo 2020. Ministry of Chemicals and Fertilizers, FICCI, NIC या Department of Pharmaceuticals. तो किसने किया है ये? Pause करें video and try to answer it on your own and then you can play and check the answer or the explanation. So here the correct choice is option B, that is FICCI. FICCI ने launch किया है and there you go. FICCI is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. इसने launch किया है अभी ये Virtual Healthcare and Hygiene Expo 2020. Moving on, we have consider the following statements with respect to SAT scheme. So क्या है ये? Compressed biogas plant at Namakkal in Tamil Nadu is the first CBG plant which has been established under this स्कीम. सो स्कीम के अंदर एक प्लांट डेवलप हुआ है ये CBG प्लांट नामक्कल तमिलनाडु में. सो ये फर्स्ट CBG प्लांट है जो SAT के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है. देन SAT scheme envisages targeting production of 15 MMT of CBG from 5,000 plants by 2023. 23 तक का इसका ये टारगेट है कि 5,000 प्लांट से 15 यूनिट्स ऑफ CBG प्रोडक्शन की. सो क्या है सही आंसर इसका अकॉर्डिंग टू यू? सो आई होप you have paused the video and here the correct choice is option C, which is both options are correct. पहला plant है under SAT and yes, this is the same target. There you have the detailed explanation and Union Minister of Petroleum and Natural Gas ने इसे inaugurate किया था. Moving on to the next one about FATF. FATF के बारे में है. FATF के अंदर दो लिस्ट होती हैं, एक तो ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट. सो क्या है ये? अ कंट्री इज पुट ऑन ग्रे लिस्ट. ग्रे लिस्ट में कब डलता है? व्हेन इट फेल्स टू कर्ब टेररिज्म, फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग. जब टेररिज्म खत्म नहीं कर पा रहा है तो उसे ग्रे लिस्ट में डालते हैं. एंड ब्लैक में किसको डालते हैं? पुटिंग अ कंट्री ऑन ब्लैक लिस्ट मीन शटिंग ऑल द डोर्स टू इंटरनेशनल फाइनेंस. से फाइनेंस बंद कर देते हैं उसका, इंटरनेशनल फाइनेंस कहीं से भी, तो दैट इज इन ब्लैक लिस्ट. सो इज इट ट्रू और नॉट? थर्ड ऑप्शन इज पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान आर अंडर ब्लैक लिस्ट. ये तीन कंट्रीज हैं जो कि FATF की ब्लैक लिस्ट में आते हैं. सो क्या है इसका सही जवाब इन चारों के अंदर? So here the correct choice is option B, that is 3 only because the question is asking incorrect ones. So the two definitions are perfectly fine. Grey list में वो आते हैं जो terrorism खत्म नहीं कर पा रहे हैं, they fail to curb the terrorism, financing and money laundering. And black list में कौन आते हैं? जिसके सारे international doors finance के बंद हो जाते हैं. So those come in black list. और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में अभी है नहीं, उसको बात किया जा रहा है इसको ब्लैक लिस्ट करने का. नॉर्थ कोरिया ईरान है जो ब्लैक लिस्ट में है FATF के अंडर. सो अगेन करेक्ट इनकरेक्ट जिसका गलत है
increase your counter by 1 guys, and there you can see the detailed explanation. And if you have any issues, do come back to us via this channel or the WhatsApp number, or you can just comment in the comment section. Next up is InSpace will be established in India is related to InSpace establish होगा इंडिया में किस लिए होगा? To help ISRO in all space related activities, to help and ensure the participation of private companies in this field. It is a private company like SpaceX की तरह है एक प्राइवेट कंपनी, या इसमें से कोई भी नहीं. सो इन स्पेस एस्टैब्लिश होगा, वो क्या है, किससे रिलेटेड है. सो please pause the video and hear the correct choices to help ensure the participation of private companies in this field. In space establish होगा एक मीडियम होगा इसरो और बाकी प्राइवेट कंपनीज के बीच में. जो भी प्राइवेट कंपनी स्पेस से रिलेटेड, जैसा SpaceX है वैसा इंडिया में एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि SpaceX इज अ प्राइवेट कंपनी जो कि स्पेस मिशन वहाँ हैंडल करती है. सो इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनी अगर कोई स्पेस मिशन हैंडल करना चाहती है या कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है, तो उसको सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना, कोई हेल्प चाहिए या कोई भी पार्टिसिपेशन प्राइवेट कंपनीज को चाहिए, सो इसरो से हेल्प लेके देने के काम जो होगा वो थर्ड पार्टी इन स्पेस का है. So this is the detailed explanation. It's a single point interface between Indian Space Research Organization and everyone who wants to participate in space related activities or use India's space resources. So moving on. Meanwhile, please subscribe to the channel अगर आपने नहीं किया है तो अभी तक, so that कल जब लाइव क्लास होगी आंसर राइटिंग की, बिकॉज वी हैव अ डेली आंसर राइटिंग क्लास एज वेल, सो वो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भिटरकनिका नेशनल पार्क. इसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में. इट हैज ऑब्टेन्ड द स्टेटस ऑफ रामसर साइट का स्टेटस इसे मिला है, एंड इट होस्ट many mangrove species and is the second largest mangrove ecosystem in India after Pichavaram mangrove. So इसके बाद ये second largest है या नहीं है. So these are the three statements and you need to find out क्या सही है. Here the correct choice is option B, that is 2 and 3. ये दोनों बिल्कुल सही हैं. रामसर साइट भी है ये और second largest mangrove है क्योंकि first largest is Pichavaram in India. And why this is incorrect? क्योंकि West Bengal में नहीं है and here it is in Odisha. You have the detailed explanation of this question here. क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि it has started a 2-year conservation for fishing cats के लिए इसने कंजर्वेशन स्टार्ट किया है इन उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है इन भिटरकनिका नेशनल पार्क. नेक्स्ट अप इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय. कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज यूनेस्को. इसे रिलीज करता है यूनेस्को. दिस इज द डिटेल्ड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन. यूनेस्को ने रिलीज किया है. SDG के ऊपर कई बार क्वेश्चन एक स्टेटमेंट लगा के पूछ लेते हैं, सो इट्स बेटर आपको याद रहे कि कौन सा SDG नंबर किसके लिए है. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का दिस नंबर 4 एंड SDG 3 इज फॉर हेल्थ एंड वेलबींग. सो ऐसे आपको एक आइडिया होना चाहिए कौन सा SDG का नंबर का गोल इज फॉर व्हाट. सो नेक्स्ट अप जस्टिस जी रोहिणी कमीशन इज फॉर. जस्टिस जी रोहिणी कमीशन को अभी एक्सटेंशन मिला है. सो ये किस चीज के लिए कमीशन है? एग्जामिनिंग द सब कैटेगराइजेशन विद इन OBCs, क्लॉज 6 ऑफ असम, स्क्रेपिंग ऑफ AFSPA या फिर कोई भी नहीं. सो क्या है सही जवाब? आई होप पॉज करके आप आंसर देंगे. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन A, एग्जामिनिंग द कैटेगराइजेशन विद इन OBCs. इसके लिए है ये जस्टिस जी रोहिणी कमीशन. इसको फिलहाल कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिल गया है कि आपको और थोड़ा टाइम दे देते हैं ये सब कैटेगराइजेशन के लिए. एंड द अदर कमिटीज 19 की कमिटीज हैं ये, तो ये थोड़ा आप देख सकते हो इधर कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में लगा के पूछा जा सकता है. सो बेटर है एक आइडिया ले लें आप. इसका रटा तो नहीं जाएगा बट स्टिल जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो एक तरीके से वो याद ही होता है. सो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट आथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. आथिरा का प्रोजेक्ट है ये, if Athira is watching this video. So it will be constructed on the largest waterfall which is located on Chalakudi river in Karnataka. कहाँ पे बना हुआ है उसके बारे में statement. And the Kadar tribal group will be majorly affected by the establishment of this project. कौन से tribal group सबसे ज़्यादा affect होगा? That is Kadar. So क्या है सही जवाब इसके अंदर? और अगर आपको कुछ गलत लगता है ऑप्शन में से, so pause करके प्लीज जस्टिफिकेशन दें उसका, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा. Next, so here the correct choice is option B, that is 2 only. Kadar tribal group ही सबसे ज़्यादा affect होगा इसके establishment से, और ये कर्नाटका में नहीं है. This is in Kerala.
सो केरला गवर्नमेंट ने अभी अभी अप्रूव किया ये प्रोजेक्ट कि इस रिवर पे हम बना देंगे थिरुसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा. So next up, it's about Marich. What is Marich? It is an indigenously developed torpedo decoy system designed and developed by DRDO labs. ये दो DRDO की labs ने इसे develop किया है. Indigenously developed torpedo decoy system. It is capable of detecting, locating, detect और locate कर सकता है torpedo को, but unable to neutralize incoming torpedoes to protect naval platforms. So detect कर सकता है, locate कर सकता है, बता देगा कहाँ पर है, but उसे neutralize नहीं कर पाएगा. So क्या है इसका correct answer? So here the correct choice is option A, that is first statement. Indigenous बनाया हुआ है ये, indigenously DRDO की labs ने बनाया है. But second statement is incorrect क्योंकि detect, locate और neutralize भी कर सकता है. Locate करेगा कहाँ से torpedo आ रहा है, उसको detect करेगा कोई torpedo है, फिर उसकी location trace करेगा and then it can neutralize the torpedo coming towards it. और इससे naval platform को बहुत ज़्यादा security आप कह सकते हो मिलती है. So this is the detailed explanation. Moving on to the next question. Which of the following a state is number one contributor of wheat in 2020? Wheat का number one contributor कौन सा state रहा 2020 में? पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या हरियाणा? So here the correct choice is मध्य प्रदेश. क्यों? क्यों मतलब लास्ट अभी तक आप देखते हो ये आंसर इसीलिए लोगों का जनरली गलत हो सकता है क्योंकि जनरली जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो पंजाब रहता है वीट का. बट इस साल पंजाब को पीछे करके मध्य प्रदेश इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, नंबर वन कंट्रीब्यूटर ऑफ वीट इन 2020. बट स्टिल अगर आप पर हेक्टेयर देखो कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, सो स्टिल पंजाब इज ऑन द टॉप. पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में पंजाब ही टॉप पे है. लेकिन जो ज्यादा वीट है आप कह सकते हो जो नंबर वन कंट्रीब्यूटर इंडिया का में है इस बार 2020 में, दैट इज मध्य प्रदेश. सो दिस इज समथिंग पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस हैं किसी भी ऑप्शन में मिला के. सो दिस इज द वन. यहाँ हमने लिखा है पंजाब अभी भी आगे है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में, बट यस नंबर वन जो कंट्रीब्यूटर है वो मध्य प्रदेश हो गया. This is talking about STARS program of India. क्या है STARS program of India? World Bank has approved an assistance of $500 million under the STARS program. $500 million approve किया है World Bank ने. Now this program is to improve the quality of education in 6 Indian states only. Only is an extreme word. So extreme words जहाँ भी आपको दिखेंगे आपको डबल श्योर होके एलिमिनेट करते हुए ध्यान रखना है एक्सट्रीम है तो. एंड यस हम एक हफ्ते में एक बार कंसोलिडेटेड वीडियो देते हैं. दैट डजंट मीन कि आप स्ट्रैटेजीज ना फॉलो करें जब आप क्वेश्चन करें. सो मेक श्योर क्वेश्चन करते वक्त स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी जरूरी है. जैसे कि आप ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले पढ़ें फॉर दिस करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड. मेजर क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ें. जहां भी आपको एक्सट्रीम वर्ड्स दिखे उसे डबल श्योर होकर एलिमिनेट करें. एंड यस एलिमिनेशन टेक्निक, ओवरऑल एलिमिनेशन टेक्निक कि आप उस टेक्निक के हिसाब से आपको क्वेश्चन का हल्का भी आइडिया होता है, पूरे स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता होता, स्टिल यू कैन सॉल्व इट. सो डोंट गिव अप, ट्राई टू रीड द होल क्वेश्चन. सो क्या है इसके बारे में सही जवाब? बोथ आर करेक्ट चॉइसेस. वर्ल्ड बैंक ने भी $500 मिलियन का फंड अप्रूव किया है. एंड यस इट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन 6 states only. So कौन कौन से हैं वो 6 इंडियन states? ये है strengthening teaching, learning and results for states. कौन से 6 states हैं? हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान. एंड वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड. सो on to the next one. Nasha Mukt Bharat Annual Action Plan 2020-21 is recently released by. किसने रिलीज किया है ये एनुअल एक्शन प्लान नशा मुक्त भारत का? HRD मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? किसने किया है? So here the correct choice is option C, that is Ministry of Social Justice and Empowerment ने लॉन्च किया है नशा मुक्त भारत का एनुअल एक्शन प्लान. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ से रिलेटेड लग सकता है नशा मुक्त भारत, तो गलत हो सकता है. So here the correct choice is Social Justice and Empowerment. The last question for the day is consider the following about coal wetlands. Coal wetlands के बारे में है. It is a Ramsar site, an important bird and biodiversity area है. Ramsar site है और important bird and biodiversity area भी है IBA, और ये असम में है. सो क्या है सही जवाब? ये हैं आपके ऑप्शंस. प्लीज पॉज इट एंड ट्राई टू आंसर. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन बी because it is asking incorrect one. So first statement is correct, second is incorrect क्योंकि ये असम में नहीं है. एंड आई होप आपने जस्टिफिकेशन दिया होगा जिसने भी एलिमिनेट किया.
So here the correct option is it is in Kerala. Recently हुआ क्या, ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि एक रेयर बायोलॉजिकल फिनोमिना दिस ग्यानैंड्रोमॉर्फिज्म एक फिनोमिना का नाम है, ये स्पॉट किया गया है एक ड्रैगन फ्लाई में, और ये कहाँ मिलती है, कोल वेटलैंड्स केरला में. सो इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड इट इज़ अ रामसर साइट, यस, एंड इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है. This was it for the day, guys. Thank you so much for joining me. And soon we will come back with CSAT class and your the current affairs for the next month. I mean, first week of July. So till then, please subscribe the channel so that you have the notification when I go live for answer writing sessions of GS, and share it with your friends so that they can also get the benefit of this free class, and give me a thumbs up as well. Thank you so much. See you tomorrow.